afternoon, everyone. Uh, I am Sangeeta. Along with Vibhash Kumar from the Heritage Consortium, Asfar Ahmad from Heritage Restore, and Mithun Pangal from Virasitam. I welcome you all to this virtual seminar on the challenges and opportunities of cultural institutions in future era. As you all know, we are holding these webinars every Saturday. So far we have held two seminars, and this is the third in this series. If you are interested, you can watch our previous seminars on our YouTube channel. The channel is the Heritage Consortium. And if you want to share your ideas with us, please write to us on our email ID, which is heritageconsortium2011 at the rate gmail.com. And our next session will be held on 19th June. So I request you all to stay connected with us. Now, some people had queries whether we are giving certificates for attending this seminar. Actually, we are not issuing any certificates. This is not an educational platform. We are not giving any kind of training, and we are not holding any workshops here. So this is a very informal talk where people are just sharing their thoughts and ideas. And we are also getting very encouraging feedback from all of you. We are willing to take this forward and join more and more people so that we can generate interest from general public as well. Uh, our aim is to reach our opinions and suggestions where it needs to be heard the most. Uh, so if this effort of ours is able to make a slight difference, this will mean a lot to us. So we welcome all the participants in this seminar, both on Zoom Meet and on Facebook. Some are our first time participants, while some are our regular attendees. We are glad to have them all here today. There are some things I need to repeat. Each lecture will have a duration of 20 to 25 minutes, followed by a discussion with the participants. The speakers can choose to be bilingual. हिंदी में भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, या दोनों मिक्स करके भी बोल सकते हैं. And another thing is that we are also trying to hold this meet within a time frame of 2 hours. Otherwise, it really stretches too long. Therefore, after each talk, we will be taking only 2 to 3 questions. So we request you all to ask question which you think is the most relevant question here. And the drill is same. Please use raise hand sticker in the chat box, or you can write your question in the Q&A section also. And people from Facebook can also join us directly on Zoom by they can just click on the link provided in the comment section. Now, as we all know, this is a tough time for professionals like us. Uh, we are working in the field of heritage, and this is a time when most of us found ourselves demoralized and directionless. But this is also the time when we have to reinvent ourselves and find new ways and avenues to stay relevant and engage with the people. And what are those avenues and what are those innovations that will keep us afloat? Let us find them and work to achieve it. Uh, Once again, we have brought three distinguished speakers on this platform who are going to enlighten us with their ideas and knowledge uh, that they have gathered throughout their career. So our first distinguished speaker of the day is Mr. K.K. Sharma, former curator, National Museum, New Delhi. Mr. Sharma has received professional training in museology and archaeology. He is currently working as a consultant with the National Handicrafts Museum and Hastkala Academy, New Delhi.
He has previously worked with the National Museum as a curator public relations, deputy curator Arms and Armor Gallery, and for some time he also held the additional charge of exhibition cell. Now, during his tenure, he carried out the digital documentation of Arms and Armor and Jatan software. Apart from this, he also played crucial role in art acquisition committee meetings and cultural exchange programs at National Museum. For a short time, he was also appointed as keeper art in Rashtrapati Bhavan. He has published several articles related to Indian arms and armor, and also brought out colored arms and armor collection portfolios titled Indian Shields and Indian Helmets. Mr. Sharma has been deputed by the Government of India as an expert to several countries while holding international exhibitions. So today he's going to talk on the role of technology, virtual media, and AI in the preservation of heritage and dissemination of education and outreach program. A very warm welcome to you, sir. You can begin now. नमस्कार, गुड आफ्टरनून। संगीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा Thank you, परिचय sir. देने के लिए। Thank you. और मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। संगीता जी, मिथुन, विभास, अशफर, नितिन खैतान और दो हमारे मेरे साथ जो पैनलिस्ट हैं, अनामिका जी और निधि जी। ये मेरा सौभाग्य है कि आप चार लोग हैं, संगीता, विभास, मिथुन और अजफर। हालांकि आज ये बड़ा संयोग है कि जो होस्ट हैं वो लगभग सभी नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं। नेशनल म्यूजियम हमारे इंस्टीट्यूट की प्रोडक्ट है। और मिथुन जरूर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है, आईटी से है। नितिन जी के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, सॉरी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ऑर्गेनाइजर है और जो पैनलिस्ट है, दोनों जो पैनलिस्ट हैं वो तीनों नेशनल म्यूजियम और नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो दो पैनलिस्ट हैं वो दोनों प्रोडक्ट जो है हमारे नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट की हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि जब नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट की परिकल्पना की गई थी लेट डॉक्टर लक्ष्मी प्रसाद सिहारी जी ने, तो मैं उनके साथ था। और जब इसके लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की इसके लिए अप्रूवल चाहिए थी, तो मैं शाम का, मैं आपको बताता हूँ कि शाम का समय था 6 बजे मैं डॉक्टर सहारे के चैम्बर में बैठा हुआ था। तो उन्होंने कहा, भाई शर्मा, चलो मुझे ना वहाँ पे यूजीसी चेयरमैन के पास चलना है। मैंने कहा, सर पिछली मेरा क्या काम है? कहते यार चलो, मैं अकेला जाऊंगा वहाँ पे, ये इसके लिए नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट के लिए उनसे सिग्नेचर करवाना चल करके। तो पर वहाँ मैं उनके साथ गया, उनके साथ। तो उन्होंने ना पूरा बताया क्यों करना चाहते हैं, क्या उनके दिमाग में, क्या मतलब उन्होंने अपना पूरा राष्ट्रीय संग्रहालय संस्था जो उनकी परिकल्पना थी उनकी, मतलब उसका कोई जवाब नहीं उनका है। वो उनकी परिकल्पना ये थी कि हम संस्थान के अंदर इस तरीके का पूरा वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का प्रशिक्षण दें और जो बच्चे यहाँ से निकल करके आए वो कोई बेरोजगार ना रहे। उन्होंने इस तरीके से ये किया था। और उसी के लिए उन्होंने कई स्कॉलरशिप भी रखी। उन्होंने मतलब 3 जगह तो मैं और डॉक्टर सहारे गए किसी के घर में, मैं अभी नाम नहीं बताना चाहूँगा, कि वो मतलब इंस्टीट्यूट के लिए इतना ज़्यादा उनके अंदर ये था कि इसको इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए कि गवर्नमेंट से हमें पैसे भी नहीं देने पड़े, ग्रांट। वो इतना मतलब इकट्ठा करना चाहते थे इसके लिए, इंस्टीट्यूट के लिए। तो उनको पैशन था कि हाँ ये इंस्टीट्यूट इस तरीके से बने, जो उनका जो विजन था। और वो तो चाहते थे कि जो इंस्टीट्यूट में जो बच्चे आए वो आधा दिन पढ़ाई करें। उनका ये था कि आधा दिन उनका थ्योरी रहे और आधा दिन पूरा प्रैक्टिकल रहे। तो कि आधा दिन हर एक सेक्शन में, कलेक्शन में जा करके काम करें। और जब तक डॉक्टर सहारे रहे उन्होंने काफ़ी स्टूडेंट्स को जो अगर बिगनिंग के जो भी अगर बैच के आप किसी से बात करें
तो सबको वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा देते थे। मैं आपको बताऊं कि जब मैंने नेशनल म्यूजियम को जब ज्वाइन किया था, तो मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने मुझे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा, आपको बोलना आता है? मैं भी बड़ा हैरान, मैंने उनको एक ही जवाब दी, मैंने कहा सर मैं गूंगा तो नहीं। कहता नहीं नहीं नहीं, म्यूजियम के फील्ड में क्या बोलना होता है, उसका अर्थ ये है कि आप पहले जा करके गैलरी में गाइड करना। तो उन्होंने मुझे 6 महीने जो था पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट में रखा कि आप जा करके वहाँ पे ये बोलना सीखिए, गाइड करना सीखिए, जिससे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा। तो ये जो आज का आपका जो टॉपिक है ना, जो आप कह रहे हैं कि चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी, चैलेंजेस ही सबसे बड़ा जो चैलेंजेस मुझे दिखता है, जो मेरा, क्योंकि मेरा जो अनुभव रहा है, और आज जितनी भी आपके संग्रहालय हैं और जितने भी आपके सांस्कृतिक संस्थान, कल्चरल इंस्टीट्यूशन, इनमें मैन पावर का बुरा हाल है, शॉर्टेज ऑफ मैन पावर। हर एक, आप किसी को भी उठाकर, एक को नहीं है, किसी को उठा करके देख लीजिए। नेशनल म्यूजियम की अगर हम बात करें, इतना बड़ा प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, हमारे पास मैन पावर है, प्रोफेशनल लोग हैं, और उसके बावजूद हम लोग जो है वहाँ पे हमारे पर इतनी बैक एंड पोस्टें की एवोल्यूशन हो रही है। हम, अच्छा, एक तरफ गवर्नमेंट बोलती है कि हम रोजगार भी देना है, रोजगार देना भी तो गवर्नमेंट का काम है ना, आप होते हुए नहीं दे सकते। और सबसे बड़ी बात है, ये बड़ी विडंबना है कि हमारे राष्ट्रीय संग्रहालय का जो महानिदेशक है वही वाइस चांसलर है, कोई अलग नहीं है। उन्हीं को वो इसीलिए किया गया था ये कि डायरेक्टर जनरल वाइस चांसलर रहे, ताकि वो जो नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट से जो बच्चे निकले वो उनको उस तरीके से उनके बारे में वो समझे टेक्निकल। लेकिन अगर आप देखें पिछले 25 साल का इतिहास उठा करके देखें ये नेशनल म्यूजियम का, तो नेशनल म्यूजियम में मुश्किल से जो है 3 या 4 साल जो है टेक्नोक्रेट ने रूल किया है। अदरवाइज जो है वो सारा रूल जो ब्यूरोक्रेटिक हो गया, पूरा ब्यूरोक्रेट जो हेड है नेशनल म्यूजियम के हेड। और वो, मैं ये भी नहीं कहता कि हाँ ब्यूरोक्रेट का भी कोई कसूर है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट क्या करेगा, ज्वाइंट सेक्रेटरी को आपको ऑर्डर दे देते हैं कि आप एडिशनल चार्ज ले लीजिए, आपको एडिशनल चार्ज करके, और वो एडिशनल चार्ज में क्या करेगा ज्वाइंट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का जो ज्वाइंट सेक्रेटरी वो तो सारा दिन तो वो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में वो रहता है, बिजी रहता है, तो वो नेशनल म्यूजियम को क्या ध्यान देगा, और उसका क्या विजन है। सिर्फ एक्सेप्ट की वी हैव 2-3 जो ब्यूरोक्रेट है, जैसे कि डॉक्टर के चक्रवर्ती, डॉक्टर बेनू वासुदेवन, ये 2-3 लोग जो थे वो ऐसे आए जिनका एक विजन था, वो समझते थे इस चीज़ को। तो और अभी जो है जो नया एक वो यहाँ पे डायरेक्टर जनरल को कन्वर्ट करके आप जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ले आए, सीईओ, तो अभी मेरी समझ में ये आया नहीं कि म्यूजियम के अंदर सीईओ क्यों। दिस इज अ क्वेश्चन, व्हाई सीईओ, are we going to make this museum is a multinational company? What is the vision of this government behind this creation of this the topmost post of director general, which has been converted into CEO? This I could not understand. So there are so many challenges. The National Museum Laboratory, how we are running the National Museum Laboratory? There are only 2 people, 2 permanent staff. उनको असिस्ट करने के लिए जरूर वो है कि आप नर्सिंग म्यूजियम इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट को आपने हायर किया, क्या कितना हायर करते हैं आप, 3 महीने के लिए हायर किया, या फिर आपने 3 महीने फिर एक्सटेंशन देंगे या 6 महीने देंगे। तो ये बहुत चैलेंजेस है ये करके। तो ये अभी जो ये कह रहे कि अभी जो कोरोना का के कारण जो है वो चैलेंजेस है, लेकिन म्यूजियम में तो पहले से चैलेंजेस थे, इसके ये कोई नई नहीं है कि कोरोना की महामारी के कारण यहाँ पे ये संकट आया। तो मैन पावर का जो शॉर्टेज ऑफ मैन पावर है, नहीं मैन पावर तो है, मैन पावर का क्या है कि उसका ठीक से उसको यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है उसका। उनको हमारे पे प्रोफेशनल ट्रेन स्टाफ, अब जैसे मैं आपको बताऊँ, आप 4 लोग यहाँ पे बैठे, अगर विभास को, संगीता को, अजपुर को, अगर नेशनल म्यूजियम के अंदर ही अगर इनको जॉब मिल जाती तो उनको ये संस्थाएं खोलने की क्या जरूरत थी। अब तो आपने अगर ये संस्था, हालांकि मुझे मालूम नहीं कि क्यों आपने ये किया है, जहाँ तक मेरी अपनी असेसमेंट है कि अगर आपको यही प्लेसमेंट अगर नेशनल म्यूजियम में मिल जाती तो आपको ये करने की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि आपको प्लेसमेंट नहीं हो पाया, चाहे नेशनल म्यूजियम में या किसी और, अगर आप नेशनल म्यूजियम जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में नहीं हो पा रहा है ये चीज़, तो आप समझ सकते कि स्टेट म्यूजियम में क्या हाल होगा। स्टेट म्यूजियम में तो और बुरी हालत है, वहाँ तो फाइनेंस की प्रॉब्लम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में ये है, हमारे यहाँ फाइनेंस की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो अगर यहीं पे ये नहीं हो पा रहा है, आपका मैन पावर का इशू सॉल्व नहीं हो सकता, तो छोटे म्यूजियम क्या कर सकते हैं इसके अंदर? बहुत बहुत हालत खराब है, मतलब अगर आप कल्चरल इसमें देखेंगे बड़ी बुरी हालत है ये करते हैं। एक अच्छी बात जो है इंडिया के अंदर वो ये है कि गवर्नमेंट सारे जो म्यूजियम है या कल्चरल इंस्टीट्यूट ज़्यादातर जो है वो सारे गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, प्राइवेट म्यूजियम बहुत कम है। जबकि आप अगर वेस्ट में देखेंगे तो वहाँ रिवर्स है सिचुएशन, वहाँ पे प्राइवेट ज़्यादा है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में कम है। तो ये जो पेंडेमिक आया है, जो हम 1-1.5 साल से देखे और 1-1.5 साल में ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि हम लोग जो भारतीय हैं वो सौभाग्यशाली हैं कि जो म्यूजियम में जो जिनकी नौकरी मिल रही है, कम से कम उनको पूरी तनख्वाह तो मिल रही है परमानेंट। लेकिन इंडिया के अंदर ही प्राइवेट म्यूजियम है जिनको बारे में मैं जानता हूँ, जो कि उसमें जैसे ही ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ वहाँ पे वो उनमें से स्टाफ निकाल दिया गया। बहुत सारे म्यूजियम्स को ऐसे प्राइवेट, क्योंकि वो कर ही नहीं सकते, कहाँ से करें, क्योंकि उनके पास सोर्स क्या है, कहाँ से लाएंगे पैसा, किसको कैसे कंटिन्यू कर दे, आपके पास एक्टिविटी खत्म हो गई। भाई म्यूजियम के अंदर सबसे बड़ी बात ये कि पब्लिक चाहिए ना, आपको रेवेन्यू कहाँ से आएगा आपको? और वो जो प्राइवेट म्यूजियम उनका मेन सोर्स जो है वो रेवेन्यू का जो है वो टिकट का, टिकटिंग से जो आता है, जो रेवेन्यू आता है उसी से वो आगे रन कर, टिकटिंग हो गया, या फिर उनके पास जिनके पास स्पेस है तो वो स्पेस को क्या करते हैं, रेंट आउट करते हैं। रेंट आउट करके जो उनको रेवेन्यू आता है उससे वो उसको सारा रन करते हैं। तो ये एक बड़ी बहुत बड़ी भयंकर समस्या हुई है। जितने चाहे वो मेहरानगढ़ मेरी डॉक्टर किकानी से भी बात हुई थी, तो बड़े म्यूजियम है, छोटे म्यूजियम, लेकिन फिर भी कुछ म्यूजियम जैसे अभी आप मैप है, म्यूजियम ऑफ आर्ट एंड फोटोग्राफी बेंगलोर है, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। वो उसका कारण ये कि उनके पास फंडिंग पहले से बहुत अच्छी है, उनका जो फाइनेंस का जो मामला वो इतना वीक नहीं है, तो इस कारण वो सारी एक्टिविटी कर पा रहे हैं वहाँ पे। उन्होंने इवन अभी उनकी कलेक्शन भी कर रहे हैं वो लोग, काफ़ी उन्होंने कलेक्शन करी है। तो इस तरीके से है। लेकिन प्राइवेट ज़्यादातर जो प्राइवेट कलेक्टर उनकी हालत ख़राब है, उनकी इस पर्टिकुलर इसी पेंडेमिक में जो उनकी हालत ख़राब हुई है। तो जो आपका शीर्षक है कि चैलेंजेस क्या हैं, तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। इन चैलेंजेस को कैसे मीट करते हैं, कैसे गवर्नमेंट मीट करते हैं, मेरा तो मानना ये है कि सबसे पहले जो है इसको टॉप प्रायोरिटी पे जो है इसको मैन पावर को ये करना चाहिए, उसको तो रिलैक्सेशन करें जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन है। अगर एज रिलैक्सेशन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें की जैसे करने, देखिए ऐसा कि अगर करने गवर्नमेंट जहाँ करने चाहते हैं वहाँ सब कुछ कर सकती है। आप ये देखिए कि इस पीरियड के अंदर भी गवर्नमेंट ने ठान लिया है कि उन्होंने सेंट्रल विस्टा का रीडेवलपमेंट करना है तो करना है। तो उन्होंने पूरा क्या नाम आपका जो है इंडिया गेट को उखाड़ दिया उन्होंने, चाहे कुछ भी है, आप जितना मर्जी रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए, पेटिशन दे दीजिए। अभी क्या नाम काफ़ी जो हमारे यहाँ जैसे पहले हमारे के फॉर्मर सेक्रेटरी जवाहर सरकार, उन्होंने डॉक्टर के चक्रवर्ती ने, बहुत लोगों ने, मैं भी उनमें से एक हूँ जिनमें कि हमने पिटीशन को साइन किया था। लेकिन इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि अभी लगभग पिछले हफ्ते ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मिस्टर हरदीप पुरी जो हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्टर है, उन्होंने हमें जो है पढ़ा लिखा मूर्ख बोला है। ये टर्म डस है कि हम लोग जो है एजुकेटेड फूल है, और वो सबसे समझदार है। तो अभी काफ़ी जितने भी हमारा लोग हैं वो काफ़ी उसके ऊपर विरोध कर, जवाहर सरकार इसको लीड कर रहे हैं, जवाहर सरकार एंड डॉक्टर के चक्रवर्ती इस चीज़ को लीड कर रहे हैं कि हाउ ही सेड एंड हु इज ही टू से दैट वी आर एजुकेटेड फूल्स एंड ही द मोस्ट वाइज मैन, कि वो हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्टर है, वो ईंट गारे वाला जो है वो कल्चर को देख रहा। बताइए ये तो दशा है हमारे इसकी। नहीं वो हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री क्या है, वो ईंट गारे वाले तो हुए, और क्या करते हैं वो, दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। एंड ही इज सेइंग कि you all people and that too in press conference he is saying that we are all educated so these are the in my opinion these are all the challenges which are we are facing, these are challenges. So for the अपॉर्चुनिटी तो देखिए इसके अंदर जो अभी जो पैंडेमिक हुआ है, जितने संकट हुआ इसके अंदर, इसने सभी को अफेक्ट किया, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई हमारी पूरी लाइफ बदल गई, हमारा पूरा जीवन बदल गया है इसके कोरोना के कारण जो है। और जहाँ तक कल्चरल इंस्टीट्यूशन है, म्यूजियम है, सबको अफेक्ट किया, इसमें तो कोई शक नहीं है।
लेकिन इसके अंदर अभी हुआ कि एक जो बड़ा बदलाव मुझे देखने को आया इसके अंदर, सबसे बड़ा जो बदलाव आया इसके अंदर वो ये हुआ कि हमारी लाइफ में डिजिटल का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया। रोजमर्रा की चीज जो है उसमें भी हमारा डिजिटल का इम्पोर्टेंस, जैसे सपोज करो सुबह जो दूध आता है वो भी हम डिजिटल से मतलब के माध्यम को यूज करते हैं। मेरी बेटी जो वो मुझे वो जो डिपो बाहर नहीं जाने देती, वो सिर्फ ऑनलाइन क्लिक क्लिक करती है और वो उसमें ऑर्डर करते हैं सुबह मॉर्निंग में, दूध वाला ब्रेड वाला सब है उस तरीके से। ये सो नो इट इज ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये तो पहले तो नहीं था ना इतना, जिस तरीके से इस पीरियड में, और ये सुविधा भी है, ऐसा नहीं ये कि नहीं, हमारे लिए बहुत सुविधाजनक भी रहा कि हाँ आपको दो स्टेप पे हर एक चीज मिल रही है, ए टू जेड आप सारा चीज आपको मटेरियल मिल रहा है। तो यही चीज आपके जो म्यूजियम्स हैं यहाँ पर ये इसको भी इम्प्लीमेंट किया गया। ये ऐसा नहीं है कि म्यूजियम में इसका यूज नहीं हो रहा था या डिजिटल का नहीं, डिजिटाइज नहीं हो रहा था, हो रहा था, चल रहा था। जैसे मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने नेशनल म्यूजियम में कलेक्शन का, क्योंकि कलेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो इसका डिजिटाइजेशन, इसके तो हमने 20 साल पहले इसकी परिकल्पना की थी कि हम इसको डिजिटाइज करना चाहिए, इस तरीके से करिए। कुछ हमने फिजिकल उसके बारे में किया भी। और ये 2020 से पहले लगभग हमारी नेशनल म्यूजियम की कलेक्शन, जो जतन सॉफ्टवेयर हम लोगों ने ये किया, जतन पूरा एक सेल बनाया है, और उसके अंदर काफी हद, काफी 80 to 80% तक तो हम कवर कर चुके थे पूरे कलेक्शन को, जो ये हमने कर लिया था। लेकिन अब जो है क्या नाम, जब ये स्टार्ट हुआ और हमने म्यूजियम जो थे वो पब्लिक के लिए बंद की, पब्लिक नहीं आई, तो फिर क्या हुआ कि हम इसको यूज किया कि ये जो टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, फिर इस एडवांस टेक्नोलॉजी, और ये एडवांस टेक्नोलॉजी केवल यहीं पर नहीं यूज, पूरे वर्ल्ड में इसको यूज किया गया कि अब जो है, अब हम लोगों के घर में जाएंगे। लोग पहले म्यूजियम में आते थे, अब जो है म्यूजियम जो है कैसे उनके घरों में जाएं, कैसे उनके डोर स्टेप पे जाएं, तो उसके लिए फिर ये जो थे प्रोग्राम शुरू किए गए। अभी देखिए, चाहे वो छोटा म्यूजियम हो या मीडियम म्यूजियम हो या बड़ा म्यूजियम हो, हर एक म्यूजियम जो है इसका यूज कर रहा है। वर्चुअल मीडिया जो है वो सबसे ज़्यादा इस टाइम में पॉपुलर है। तो इसके बाद मैं अभी मैंने केस स्टडी लिया कि नेशनल म्यूजियम क्योंकि प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, और इंस्पाइट ऑफ चैलेंजेस, इंस्पाइट ऑफ सो मच शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, नेशनल म्यूजियम का एजुकेशन सेल जो है वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। वहाँ पे दो लोग हैं, दो लोगों की टीम है, जबकि एक मिस रिगे सेवा है और एक और लड़की है, कमाल के नाम मुझे मत, दो लोगों की, अगर दो लोग इतना काम कर सकते हैं। मैं अभी जब आपको ये स्लाइड दिखाऊंगा तो ये एक और चीज जो थी, जो बहुत अच्छी डॉक्टर BR मणि ने करी, वो हम लोगों ने पूरे उन्होंने एक मीटिंग करी थी, और उनका ये सुझाव था कि हम लोग रिजर्व कलेक्शन में से एक एग्जीबिशन लगाए, बड़े छोटे स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर, छोटे स्तर पर, और उसमें केवल असिस्टेंट क्यूरेटर जो थे, और असिस्टेंट क्यूरेटर को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे कि वो उसको कंसीव कर दे, उसका कंसेप्चुअल नोट भी वही बनाएगा, और उसके आगे उसके कैप्शन भी वही लिखेगा, पूरे A to Z उस एग्जीबिशन का वही करेगा। इवन जो वो इनॉग्रेशन में जो है वो एक असिस्टेंट क्यूरेटर बोलेगा। तो उसमें हुआ क्या है, इससे सबसे बड़ा फायदा, वो हालांकि बहुत छोटे स्तर की एग्जीबिशन थी, तो उसमें एक फायदा ये हुआ कि जो हमारा रिजर्व कलेक्शन से जो जितनी आइटम थी वो निकल करके आई, नंबर 1। नंबर 2, जो असिस्टेंट क्यूरेटर को जो ट्रेनिंग मिली और जो उनका जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ उनका, वो एक बहुत जबरदस्त काम हुआ उसके अंदर, कि उनका हर एक असिस्टेंट क्यूरेटर का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। अभी नेशनल म्यूजियम का हर एक असिस्टेंट क्यूरेटर का अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो अकेले एग्जीबिशन को क्यूरेट कर सकता है। अभी रिसेंटली जो हमारी ऑनलाइन एग्जीबिशन जो बुद्धा के ऊपर की है, वो अवीरा भट्टाचार्य ने करी है, ये पूरी ऑनलाइन, उन्होंने इतने और एक और लड़के सामा करके, दो लोगों ने मिलकर के ऑनलाइन एग्जीबिशन को किया। और ऑनलाइन एग्जीबिशन केवल नेशनल म्यूजियम की कलेक्शन से नहीं है, उन्होंने जहाँ जहाँ पर दूसरे, जैसे पाकिस्तान से, सेंट्रल एशिया से, चाइना से, बहुत सारी कंट्री से उन्होंने वो डिजिटल इमेजेस, जो हाई रेजोल्यूशन की डिजिटल इमेजेस को लेकर के पूरी उसको कंसीव किया उस एग्जीबिशन को। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, बहुत बढ़िया काम हुआ। और वो अभी क्या कि ऑनलाइन एग्जीबिशन काफ़ी की जा रही है, और नेशनल म्यूजियम जो है काफ़ी चीज़ें जो IIT के साथ भी कोलैबोरेशन के साथ, जैसे हम रामायण एपिक्स के ऊपर काम हो रहा है,
रामायण के ऊपर है, महाभारत के ऊपर है, और दूसरा एक और जो पूरा वर्चुअल गैलरी जो है पूरी क्रिएट की गई है अजंता के ऊपर। So that is a great work, which the National Museum is doing. तो नेशनल म्यूजियम एक रोल मॉडल हो गया, एक मतलब रोल एक्चुअली एक रोल मॉडल के रूप में मतलब उभर करके आ रहा है। अब इसके बाद जो दूसरे जितने भी म्यूजियम्स हैं और जितने भी कल्चरल इंस्टीट्यूट्स हैं, अनामिका आप क्या कोलंबिया से कर रहे हो जी? अच्छा, एनीहो, तो ये एक बार नेशनल म्यूजियम ने बहुत अच्छा काम कर रहा है कि एज ए रोल मॉडल जो है वो मतलब काम कर रहा है इसमें। तो अभी हम लोग मिथुन स्लाइड देखें, स्लाइड को अगर चलाया जाए तो। Yes, sir. I'm just putting it up. या प्लीज। तो हम स्लाइड देख लेंगे क्योंकि हमारे फिर टाइम की भी कॉन्स्टेंट रहेगा। ये सारे स्लाइड के लिए मुझे अवीरा भट्टाचार्य ने बहुत मदद की है। अगर अवीरा भट्टाचार्य इसमें जुड़ी हुई हैं तो मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। Thank you very much, Avira, for providing all this material, for providing all these visuals. मैं देख रही हूँ, अवीरा जी तो दिख नहीं रही, शायद फेसबुक पे हो। Yeah, 1 second. But we will go through the slides, and I request all of you to please visit this, the online exhibition. It is already on Facebook of the National Museum. SEO online. Shall I go? Please bear with me. Some technical issue. I'm not. Okay, no problem, no problem. It will take a minute. Yeah. मीनवाइल सर, ये श्रीधर जी का एक पैनल में मैसेज है। इन माय ओपिनियन, व्हाई म्यूजियम्स आर स्टिल बीइंग लाइक ट्रेडिशनल वे ऑफ प्रेजेंटेशन, व्हाई कांट दे बिकम इंडिजिनस, हाईली मॉडर्नाइज्ड टू पुल मैक्सिमम विजिटर्स। क्या पूछ रहे हैं? चैट बॉक्स में अगर आपको दिख रहा होगा, चैट बॉक्स पे अगर आपको मैं दिख चेक रहा कर होगा, लेता हूं। एक बार देखिए। मैं चेक कर लेता हूं चैट में रिकॉर्डिंग किसमें। अच्छा, एक मिनट, कहाँ? एक मिनट, चैट वाले अच्छा। गुड आफ्टरनून के ज्यादा है। अच्छा, नीचे होगा, सबसे नीचे। श्रीधर जी का। अच्छा ठीक है, एक मिनट। जी श्रीधर। श्रीधर जी, आप your question is that why museum are still being like traditional way of presentation. Now these are changes. It is not true that all the museums are they are all traditional way of presentation. Now there are changes. In almost all the museums there are they are using the modern display techniques. There may be exceptional case which if you can cite me any this museum. Why can't they? They are indigenous, no doubt. Highly modernized to coal material. They're trying their best, but it depends on the, which I cited that I got the manpower as well as the finance. But, the museums are trying to modernize. Yeah. Yes, sir. So now,
Okay, so what is the objective? That is, this we have the virtual engagement. In the virtual engagement, means we will go for the online exhibition. So this is the online exhibition is a SEO online exhibition on shared Buddhist heritage. You know, shared Buddhist heritage. We have all this SEO country. They have shared their images with the National Museum, and then National Museum organized this exhibition. So we can go for the next slide, please. Yeah, now you can see this is the exhibition. This is the poster of this first one. You can see which one is the SEO online exhibition on shared Buddhist heritage. This has been organized at the Archaeological Survey of India complex, and these are other exhibitions are coming. So these are the posters of the coming exhibition, which are online exhibition. This is a Bodhicitta, then the Bengal frame, and then this Rama painting. This is all from painting section. So these are all the three posters, and then the one is that exhibition, online exhibition, which is going on at National Museum. Next, please. Yeah, this is the all educational activity which are conducted by Rige Siva, and you can see here the Rige Siva is interacted with the children. Now the same thing is now they are doing on virtual actually. So these are at National Museum. These are all the pictures, and now they are also doing this online also, online workshop, online all activity. They are education department of the National Museum is doing. Next, please. So this is now they have also started the online certificate course, and here you can see the timings and dates for the certificate course, which is conducting this education department of the National Museum. So these online certificate courses are on different collection, on the they have selected the masterpieces of the National Museum, and they are conducting these certificate courses, and they are very useful. They are all useful, and a good number. Attendance is very good. It's a very good idea, and people are engaged with these certificate courses during this pandemic period. Next, please. Yeah, this is the live storytelling session. This was actually this was conducted at National Museum. This is the live one. Now they are now doing this same now online. Next, please. So these are the different music concert, and they have selected some. We have classical, folk, regional instrument, in our Ragmala painting, as well as we have few musical instruments. We have full-fledged musical instrument gallery. So we ask the visitor to select the these any musical instruments, and then they do the story on that. Next one, please. So these are all the recreate challenges for the National Museum. So you can see how this girl is doing. They recreate from to see the this hairstyle in the this head, and they are doing that. Recording in progress. So your visitors are very inspired from these, from the statue, from other artifacts. These are scavenger hunt by the virtual scavenger hunt for the visitors. Next page. Yeah. These are the quiz series and National Museum crossword. These are all educational program which the National Museum is doing. Next one, please. This is a sketchbook series and coloring contest, and from the based on the collection of the National Museum. These are all the community involvement in for the in assessing the collection and interpreting the collection. Next, please. Yeah, this is the Anubhav Gallery, which has been created, and this is all conceived and
designed by Riga Siva, and now they are using all this instrument for this, for getting the information. So now here, we have the hop on, which we have, implemented in some of the gallery. First gallery was the bronze gallery, and it is very, very popular. We can use how we can use the technology for this. Yeah. Next one, please. So these are the curators. They have started, National Museum started the curator series. So the curator, they give the choice to the curator. They select the topic, and then they of that choice they select the object, and then they interpret the object. Next one, please. This is now museum has also started the 9-minute series. In 9 minutes, you will get for one gallery. So it's also very, very popular, this one. Next one, please. Now this is the virtual experimental museum on Ajanta Bema. This is a recent project, and here they are using the technology. This is the use of the latest technology. So it is all recreated. This is the Ajanta is created here, recreated in the gallery, and by the all this technology, the maximum technology used is here. Next one, please. You see, this is the Ajanta, and here they are getting the visitors are getting the experience both. They have the interactive. They are very interactive with the this Ajanta cave. Now we are setting up. This is in the process of the Central Asian Antiquity Gallery, and they are going to construct 4 galleries actually, and all this technology and these all instruments will be used for this gallery. Next one, please. These are all the panels, huge panels of the Central Asia. So this work is going on. This is the Buddhist art and tradition. This is the latest. This is going on. This is a permanent exhibition. Next one, please. Yeah, this is another gallery. Musical instrument. Anthropological gallery. Next, please. This is सर the last slide. आई थिंक इतना ही है इसमें. इतना ठीक है. हाँ. Yes. जी, जी. So I conclude with this that we have both. We have challenges, but we have to meet the challenges. We have to face the challenges. There is no other way. We have to work. Even there are so many challenges. In spite of these challenges, but we have the opportunity, and if you have the commitment, then you can do. If only you need that is the commitment. That if you have the commitment, then definitely you will get the help and you will get the support from all corners, and then you can achieve your goal. थैंक यू सर. आपने बिल्कुल सही बात बोली. हमको चैलेंजेस भी पता है, अपॉर्चुनिटीज भी पता है, दोनों पता है. बट हमारा जो विलिंगनेस है वही डिसाइड करेगा कि हम फ्यूचर में क्या करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. नहीं फ्यूचर अच्छा ही होगा. हाँ, किसी के भी क्वेश्चन है. जी सर. किसी को भी सवाल पूछना हो तो रेज हैंड स्टिकर यूज करके पूछ सकते हैं और अपना माइक ऑन करके पूछ लीजिए. संजीव ने खुल करके. जी 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 संजीव सर नहीं, संजीव ने बोला खुल करके बोलूँ. अब और कितना खुल करके बोलूँ मैं, बताइए. संजीव कहाँ पर हो भाई, मैं बताओ कितना खोल के बोलूँ. मैंने बोल तो दिया ही है जितना मुझे मेरा अनुभव था, लेकिन आगे से भी ज्यादा बोलने की कहीं किसी भी स्टेज पे जरूरत है किसी भी, तो मैं जरूर बोलूँगा. जी सर. जी सर. सर ये Q&A सेक्शन में अभिजीत कुमार का मैसेज है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रीसेंट पॉलिसी चेंजेस इन NM एंड अदर म्यूजियम्स इन इंडिया that are very needed in current pandemic time or even further after when we come through this period after this to enhance digital experiences?
मतलब ये सर Q&A सेक्शन में है, अगर Q&A पे क्लिक करेंगे तो यहाँ नहीं मिल इसमें जाएगा। आ तो रहा लेकिन वो क्वेश्चन नहीं आ रहा क्या अच्छा, उस पे क्लिक कीजिए। Q&A में अभिजीत कुमार का जी, तो Q&A। नहीं चेक हाँ द Q&A सेक्शन है जी जी, क्वेश्चन। चैट बॉक्स के बगल वाला Q&A वाला हाँ ना वो है। Q&A में मैंने वो जी साइड जी में आ रहा है, एक मिनट जी 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 जी। अच्छा अभिजीत कुमार what do you think about the recent policy changes in national movement for the after अभिजीत मेरा कहना यही है इसमें कि जो भी अभी इस पैंडेमिक टाइम में जो भी इसमें डिजिटल का जो इतना भी हमने नेशनल म्यूजियम ने या किसी भी कोई भी इसका जितना उपयोग कर रहा है इसका उपयोग आगे भी चलेगा, इसका आगे आने वाले पीरियड में, क्योंकि इसका बहुत जरूरी है, इसका बहुत उसके क्योंकि उसके एडवांटेज बहुत, आप ये मत समझिए कि केवल ये इसी पीरियड के लिए किए गए थे, ऐसा भी नहीं है। मैंने जैसा आपको पहले बताया कि डिजिटाइजेशन जो कलेक्शन का वो बड़ा पहले से शुरू हो गया था, लेकिन अभी जो था वो इस काल में जितना ज्यादा एक्टिविटी की गई, ये एक्टिविटी आगे भी रखनी पड़ी, क्योंकि अभी हमें लग रहा है कि इसके एडवांटेज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा उसके फायदे हैं आपको, क्योंकि हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपको घर बैठे मिल रही है। लेकिन मैं अगर वो जब ये उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जाना चाहता हूँ और उसके बारे में और कुछ जानना चाहता हूँ तो फिर मैं जाऊंगा, उसके लिए जरूर जाऊंगा, क्योंकि जो फिजिकली जो एक्सपीरियंस है वो कभी भी वर्चुअल में तो नहीं मिल सकता है, उसमें असंभव है वो। लेकिन इस समय क्योंकि मजबूरी है आपकी कि म्यूजियम बंद है, आप कलेक्शन को एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन डिजिटल का एक्सपीरियंस, डिजिटल का बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपको पूरी कलेक्शन की मिल जाती है, क्योंकि जो रिजर्व में भी रखे हैं वो भी आपको सारे वहाँ पे आपको मिल रहे हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी अभी ये तो है नहीं कि अभी जो डिजिटाइजेशन किया जा रहा है वो केवल जो जो हमारे ऑन डिस्प्ले उन्हीं का, नहीं ऐसा नहीं है, पूरी की पूरी कंप्लीट कलेक्शन जो भी हमारी रिजर्व में कई सालों से कभी वो उनको फोटोग्राफ नहीं हुआ था, कभी उनका कुछ हुआ नहीं था, वो भी अभी हमारे इसमें आ रहे एक्सेसिबल है, मतलब विजिटर के लिए एक्सेसिबल है। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और ये प्लेटफॉर्म आगे चलेगा और चलना चाहिए, ये चलेगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं, क्योंकि आप इस एडवांस टेक्नोलॉजी से आप पीछे हो नहीं सकते, क्योंकि उसके एडवांटेज बहुत ज़्यादा एडवांटेज है इसमें। देखिए आपको बहुत कम से कम फिजिकल, एक बार आपने उसका हाई रेजोल्यूशन में अगर आपने फोटोग्राफी करवा ली, उसका कंप्लीट डिजिटाइजेशन करवा लिया, तो उसके बाद आपका काम बहुत कम हो जाता है उसमें फिजिकल आपका, क्योंकि ऑब्जेक्ट को फिजिकल करना, वो भी पार्टिकुलरली एंटीक्विटी में आपको ऑब्जेक्ट को फिजिकली ज़्यादा उसको हैंडल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी आपने लॉन्गेविटी का ध्यान रखना है उसको, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा हैंडल करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको डैमेज होने का खतरा रहेगा। तो इसलिए ये सबसे अच्छा तरीका है कि हम टेक्नोलॉजी को, और ये टेक्नोलॉजी आगे, चैलेंजेस मैंने कहा कि चैलेंजेस हैं, इसमें कोई शक नहीं कि चैलेंजेस हैं, लेकिन इन चैलेंजेस के होते, इन चुनौतियों के होते हुए भी आगे इसको हमें करना, और हो रहा है, इसमें बहुत एडवांस हो, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपको एक बड़ा छोटा सा, निधि भी उस म्यूजियम से एसोसिएट रही है, वहाँ कोई बहुत ज़्यादा मैन पावर नहीं है, बहुत ज़्यादा फाइनेंस नहीं है। ये संस्कृति म्यूजियम्स हैं यहाँ पे दिल्ली में, मेहरौली गुड़गांव में, वेल डॉक्यूमेंटेड है, एक एक चीज़ उनके कंप्यूटर, और वो आधे घंटे के अंदर पूरा कलेक्शन को आप देख सकते हैं उसको। तो ऐसा नहीं है, एक ना विलिंगनेस होनी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि उनके पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा स्टाफ है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा उस म्यूजियम से एसोसिएशन रहा, और हमने शुरू से ही ऐसा ये किया कि जो नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप मिलती, तो हम एज इंटर्न वहाँ पे हम उनको वहाँ पे डिप्यूट कर लेते थे, वहाँ से रिक्वेस्ट करके। तो उससे हुआ क्या कि जो हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को, उनको भी ट्रेनिंग मिली, उनके अंदर कॉन्फिडेंट आया। अभी जो दोनों पैनलिस्ट है वो दोनों में से एक पैनलिस्ट ने वहीं पे जॉब की है, और निधि ने, पंकज क्या नाम वहाँ पे राष्ट्रपति भवन में है, उसके बाद ललित कला एकेडमी में जो अभी क्या नाम रामाकृष्ण है, उन्होंने वहाँ पे इसी संस्कृति म्यूजियम में इन्होंने काम किए, जॉब करके इतनी अच्छी अच्छी पोजीशन पे पहुँचे। मृणमोय दास अभी नॉर्थ ईस्ट में है, वहाँ पे उनको कहीं पे अभी उनको अभी जॉब मिल गई। तो ऐसा नहीं, एक बात विलिंगनेस होना चाहिए आपके अंदर, आपके पास शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट, इतनी कम मैन पावर के अंदर
और आज पूरी वेल डॉक्यूमेंटेड, अगर आप मैं दिल्ली के अंदर बोलूं कि नेशनल म्यूजियम भी इतना वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं जितना वो, चाहे कलेक्शन छोटी है, इससे कोई बड़ी बात नहीं होती अगर छोटी की और बड़ी सी, लेकिन नेशनल म्यूजियम के आपके पास इतना रिसोर्सेस है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी अभी भी हम मतलब यही कह रहे हैं कि जी हम 100% नहीं बोले कि 100% हमने डिजिटाइजेशन कर लिया है। तो आपका दो चीज़ बहुत ज़रूरी है, एक विलिंगनेस होना बहुत ज़रूरी है, कमिटमेंट होना ज़रूरी है। ये दो चीज़ें होंगी तो कोई असंभव तो कुछ है नहीं। और इसके लिए तो सबसे ज़्यादा अच्छा हमें मिथुन बता सकते हैं कि अगर ये चीज़ें हैं तो आप वो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है तो बड़े आराम से किया जा सकता है। आप मिथुन को दे दीजिए, देखिए वो 3 महीने के अंदर कर देंगे पूरा काम। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जी और सर, और किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार जी की क्वेरी हो, Q&A में पैनलिस्ट ही को जी जी हाँ सर Q&A में ही एक और हैं अनीता रानी कोठारी, उनका सवाल है Q&A कैन यू वर्चुअली अरेंज लेक्चर, इट विल बी यस यस भाई मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन ये संगीता और ये तो जरूर कर सकते हैं वर्चुअली जो लेक्चर वगैरह, वो तो आप इनको बोलिए ये कर सकते हैं इनको, क्योंकि मैं तो पैनलिस्ट हूँ, पैनलिस्ट तो नहीं कोई अरेंज करेगा, लेकिन आप अनीता जी आप प्लीज इनको किसी को भी, संगीता है, मिथुन है, अजबर जी, नितिन जी हैं, इनसे आप बात करें तो ये जरूर आपको वर्चुअली लेक्चर अरेंज करेंगे, जहाँ तक मेरा ख्याल है जरूर आप इनका लेक्चर अरेंज करवा दीजिए। जी जी विभाष बताएंगे। हाँ जरूर जरूर। ये हम लोग और अगर मुझे लेक्चर देना तो मैं तो कभी भी आ जाऊंगा, मुझे अगर बोलना है तो मैं आ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। श्योर सर, भविष्य में ऐसी ही संभावनाएं हैं सर, भविष्य में ऐसी हम लोग एक छोटे छोटे कोर्स जो है मे बी जुलाई अगस्त से कुछ मॉड्यूल कोर्सेज जो है 10 डेज का 5 डेज का एक ट्रेनिंग कोर्स हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें कि सर जैसे आर्मी एक्सपर्ट हैं, तो इस टाइप के अदर एक्सपर्ट के साथ उसकी ऐतिहासिकता क्या है, किस तरीके से विजिटर फ्रेंडली बनाया जाए, क्या उसका इंटरप्रिटेशन रहे, क्या किस तरीके से डिजिटाइजेशन पार्ट हो, तो सभी चीजों का एक प्रैक्टिकल वर्कशॉप कम जो है वो ट्रेनिंग कोर्स होगा। हम लोग चाहेंगे कि उसमें और वो सबके लिए खुला होगा, ओपन होगा ना, सबके लिए ओपन होगा। जी सभी के लिए सर, सभी के लिए बहुत अच्छी बात। सिर्फ सब्जेक्ट के लिए ही नहीं, सब्जेक्ट के बाहर के भी जो लोग हैं जिनका इसमें इंटरेस्ट है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑनलाइन मोड रहेगा, और हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे समय में रखें, वीकेंड में रखें, ताकि मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर सकें उसको। नहीं बहुत अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा, गुड, गो अहेड। थैंक यू सर, थैंक, नमस्कार।